University? We have about 4,500 plus students in diploma. So, and currently it's a big number that has joined. We have about 2,300 plus students who are here. I think because of the break, they will join back in. But yeah, yeah. Nita, Yes, ma'am. do we begin in another 1 minute? One Or minute. Yeah, we have a minute. yeah, okay. So in the morning, Dr. Banerjee, we had Manish ji and Atish ji joining us. Then we had another one session was the leadership. Just in getting the kids, I think, more acquainted to college life, a new way of life. Because they've joined the university now, even if they're in the polytechnics, they are under the ambit of the university. So it's still a new change for them. So we're just trying to get them acquainted with the leadership and their experiences. It's always interesting for the kids to understand that they didn't just become who they are. So I think it was nice for them to hear all the successes and the failures everybody goes through. Manishji and Atishji are a tough act to follow. That Professor Bora, I'm sure, will be able to tell you better. Priyansi, can we start now? We have, Yeah, we can start. Yeah, yeah. thank you. So, very warm welcome to all our young students and most of all, our guest speaker for today, Dr. Rukmini Banerjee, who has been very, very kind to spare her time and speak to us about all the experiences she has gathered in the last few decades that she's been in the education field. We are really fortunate, Dr. Banerjee, to have you with us. And स्टूडेंट्स को मैं ये आज बताना चाहती हूँ कि ऐसे सुनने के मौके बहुत नहीं मिलते हैं। हम लोग जब पढ़ रहे थे, हम लोग जब कॉलेज में थे, हम लोग को ऐसे मौके नहीं मिले हैं। So I think this is a very fortunate session that we are having with you. And I must tell you that she has changed the face of education and is an inspiration for all of us here today and India. She has put India on the global map. And we thank you very much. And we are very excited to hear your thoughts today and take from your guidance as to what we should do going forward as a university and for our students who have stepped into this new journey of their lives. So today's session that we have is on being a successful learner and what it means to be a successful learner in today's context. Today's children are going through much more than we went through. So I think that's what we have prepared our conversation on. And I would like to introduce Dr. Rukmini Banerjee, who's the CEO of Pratham, one of our foremost education organizations which has put us on the global map. And of course, a lot of us know about Dr. Banerjee, but for our young students, I think they would like to know a little more. So Rukmini Banerjee, which was trained as an economist at St. Stephen's College and the Delhi School of Economics. She's been a Rhodes Scholar at Oxford University and completed a PhD at the University of Chicago in 1991. Dr. Banerjee returned to India in 1996 and joined Pratham. And a round of applause to you for that, Dr. Banerjee. Over the years, she has worked extensively in Pratham's education programs in rural and urban areas. Along with her teams, she has played a major role in designing and supporting large-scale partnerships with state governments in India for improving children's learning outcomes. Dr. Banerjee led Pratham's research and assessment efforts, including the Annual Status of Education Report, ASER, which is, of course, now a reference point for all of us in India and around the globe, exercise from 2005 to 2014. Since 2015, she has been the CEO of Pratham. In 2008, Dr. Banerjee received the Maulana Abdul Kalam Shiksha Puraskar by the government of Bihar, India. She was the first recipient of this award. In 2021, Dr. Banerjee was awarded the Idan Prize for Education Development. She is originally from Bihar
calls herself a proud Bihari. She is now based between New Delhi and Pune. And Dr. Banerjee writes fluently on education in both Hindi and English dailies in India. And she enjoys writing books and stories for children. So I think that's, a lot in a person's lifetime that we can think of Dr. Banerjee. And once again, a heartfelt gratitude for sparing your time to be with us. And as we begin the session, I'm just going to talk to you about maybe some of the questions that have come in from the audience for us. We've had some conversations with our students as well and our leadership to say that you were coming and they did want to know a little more about you. So, while you built your career across continents and you've come back to actually serve the motherland, and your journey at Pratham has been really powerful and you have led by example. We would like you to give us a sneak peek into the purpose of your organization and the Learning for Life concept, which you have so carefully crafted. So we'd like to hear a little about that, Dr. Banerjee, please. Over to you. Thank you. Thank you so much, Neetaji, for inviting me. We are called Pratham, तो हम प्राथमिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा में काम करते हैं and हमें कभी यूनिवर्सिटी बुलाती नहीं है. So I'm very excited to be called to a university. हम स्कूल रिलेटेड बहुत सारे इवेंट्स पे जाते हैं, स्कूल में भी जाते हैं, but really it's quite rare to be invited to a university. So I was very excited, and particularly a kind of university जो आप लोग हैं, it's a very new idea in a place like Delhi where a lot of new things are being tried. So it is really a privilege to be able to interact with all of you and with your thousands of students who I can see are online. So अगर मैं थोड़ा सा बताऊं प्रथम के बारे में, our प्रथम started in Bombay and हमारे जो दो founders हैं दोनों university professors थे. Madhav Chavan is actually a chemistry professor and Mrs. Farida Lambe is she retired as the vice principal of Nirmala Niketan College of Social Work. तो दोनों का एक university background था and they both worked in adult literacy in the late 80s and early 90s. And उस वक्त I think बहुत सारे students तो पैदा भी नहीं हुए थे तब, but for those of us who remember, it was a very fertile time in adult literacy. There were movements across the country, and Bombay prides itself as being one of the first urban adult literacy movements. तो उसमें से ये तो हमारे साथी निकले education में, and I think it is very natural कि जो बड़ों के साथ काम करते हैं कुछ टाइम के बाद उन्हें बच्चों के साथ लगता है कि वहां से शुरू करनी चाहिए, एंड जो बच्चों के साथ काम करते हैं आफ्टर सम टाइम दे फील कि बड़ों के साथ करनी चाहिए. तो ये थोड़ा चिकन एंड एग टाइप ऑफ सिचुएशन है, बट आते आते हमारे पूरे जर्नी में बिटवीन चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स आई थिंक देयर इज अ होल layer that is clearly very important, which is youth. And so I think over the years, even though our mission is every child in school and learning well, प्रथम में हमारे पास एक काफी बड़ा youth skilling का एक component है. And just the last 2 days I was with our leadership of our skilling team, and एक चर्चा जो हमारी हुई, एक चर्चा तो हुई कि मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ, and they were very curious कि किस तरह का यूनिवर्सिटी है, हम जैसे लोग जो यूथ के साथ काम करते हैं, उनकी ट्रेनिंग और स्किलिंग करते हैं, हमारा क्या रोल हो सकता है इस तरह के लैंडस्केप में. But the other thing was that how do we change our tagline to actually include youth? And we are contemplating various things, but something like getting young people ready to take their first step in life. I mean, that is the kind of thing that we're talking about. So we essentially started as a very ground-based organization in Bombay, and हमारा तरीका ये रहा है कि we look at what is going on and उसमें gap क्या दिख रहा है, and फिर उस gap को हम समझने की कोशिश करते हैं, and then समझने के बाद how do we create some kind of a bridge or a solution in that gap जिसमें बहुत लोग शामिल हों. We believe that if there is really a big gap in society or in a system, वो कम छोटे संख्या के लोगों में नहीं हो सकता है. It requires quite a big movement with a lot of different people entering it, and that's how we started our education work. तो early years में बहुत ही community based था, and community के साथ साथ जो नजदीक के स्कूल थे, जो municipal schools थे of Bombay, उनके साथ हमारा ताल्लुक बना. We started with early childhood, but now when I look back, I think it was as much the children as the parents, as the youth volunteers who really spanned and bridged the gap between the school and the parents to create a pathway for children to grow. उस वक्त हम बच्चों की नीड्स को ज्यादा देखते थे, बट होते होते हमने जो
वहाँ पे कोई दोस्त मिल जाता पहले से स्कूल के, तो अरे वाह, thank God there is somebody there who I know. That whole sense of relief that was there. But I think what I remember predominantly was the excitement. बहुत exciting moment. We're so fortunate to have you, Professor Patnaik, here with us. Professor Patnaik joins us from Xavier University, Bhubaneswar, where she was the head, she was the Dean of Studies at Xavier University, Bhubaneswar. We also have Professor Rehan Khan Suri, who joins us from Jamia, and he is now the Pro Vice Chancellor of the Delhi Skill and Entrepreneurship University. So, सर हम आपसे भी सुनना चाहेंगे आपके पहले दिन के बारे में. Okay. So, as you know, I'm from a small village or small town from UP. So I did my schooling in Hindi medium. So the biggest challenge and the biggest that time the nervousness when I landed at Delhi for my college or university. I did my engineering from Jamia, and that was the biggest challenge at that time because अंग्रेजी was the biggest fear. और उसके बाद जो हुआ तो दिल्ली में आना एक छोटी जगह से एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत नर्वसनेस थी और दूसरा ना बहुत डर था कि हम एक छोटी जगह से हैं, यहाँ तो बहुत अच्छा फिर कोएड कॉलेज था, हमने जहाँ पर पढ़ाई की थी वहाँ पर शायद मेरे ख्याल से हमारे पूरे कॉलेज में, मेरे कॉलेज का नाम था श्री गणेश शंकर कॉलेज, उसमें शायद 1 या 2 लड़कियाँ रही। यहाँ पर वो हम उस कल्चर से आए थे, वो दोनों चीज़ें और एक बिल्कुल खुला हुआ माहौल, एक बहुत प्राइड भी फील होता था कि हम दिल्ली में आके पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये एक कहते ना मिक्स एक्साइटमेंट था और मतलब पहला एक हफ्ता बहुत ही स्केरी भी था, मतलब बड़ा डर था, नर्वसनेस थी, लेकिन एक्साइटमेंट बहुत था। लेकिन और जाहिर है जो नए दोस्त बनते हैं और आपका जो पहला आपके जो सबसे बराबर में बैठा होता है क्लास में ना, वो दोस्त बनना शुरू होता है और ऐसा लगता है ये जिंदगी भर का दोस्त होगा और पता ही चलता है कुछ दिनों बाद वो नहीं रहता, कोई और अच्छा दोस्त हो जाता है। तो इट डिपेंड्स, तो ये बहुत होता है। तो सबसे अहम मुझे लगता है कि जो एक सबसे अच्छी चीज रहती है वो आपका फ्रीडम होता है स्कूल से आने के बाद, वो जो बाउंड्रीज के अंदर आप रहते हैं। अब आपका कोई क्लास का टाइम नहीं है, कोई आपको ये नहीं पूछने वाला आप किस क्लास में आएंगे। और जैसे प्रोफेसर पटनायक ने बताया कि यूनिवर्सिटी में सर्च करना पता चाहिए आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लास कहाँ हो रही है, अच्छा एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लास कहाँ हो रही है, यू हैव टू गो टू डिफरेंट क्लासेस विद डिफरेंट ना। हमारे ज़माने में कॉमन क्लासेस होती थी, सेकंड ईयर से फिर डिफरेंट ब्रांचेस में जाते थे, तो एक अच्छा बड़ा कॉम्बिनेशन होता था। पर आज भी ये लगता है कि तो कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो सोच के। सो थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग दोस डेज। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग विद अस. आई एम श्योर हमारे स्टूडेंट्स को भी ऐसी मिक्स्ड फीलिंग्स होंगी, एक्साइटमेंट भी होगा, डर भी होगा. जो नए दिल्ली आएंगे बाहर से वो तो एग्जैक्टली यही फील कर रहे होंगे. तो थैंक यू. आई थिंक उनको भी लगेगा कि हाँ इट्स ऑल नॉर्मल, इट्स अ पार्ट इन दिल पास इट. नेक्स्ट क्वेश्चन हम रजिस्ट्रार सर अश्विनी कंसल सर से पूछेंगे. सर जैसे हम जानते हैं कि आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा इंजीनियरिंग से है, आप एडमिन में इतने साल रहे हैं, आपने स्पोर्ट्स भी कंटिन्यू किया है, आप अभी भी करते हैं, यू रन, यू डू मैराथन. तो आपने उस टाइम पे जब आप पढ़ रहे थे तब ये कैसे बैलेंस मेंटेन करते हैं? थैंक यू आदित्य, थैंक यू आरुषि. इनफैक्ट जब मैं पढ़ रहा था तब ये वैसा मैंने कुछ नहीं किया खास, ये सब मैंने अभी 2-4 साल पहले शुरू किया. तो जब 2-4 साल पहले शुरू किया और बस शुरू कर रहा, धीरे धीरे चीजें जुड़ती चली गई. और अभी इनफैक्ट मैडम ने जैसे कहा था बुक रीड कीजिए, मेरे को सबसे ज्यादा फियर लगता था बुक पढ़ने से. मैंने जिंदगी में कभी किताब नहीं पढ़ी अदर देन अवर टेक्स्ट बुक्स. मैंने अपनी पहली किताब लगभग 3 साल पहले शुरू की थी, तो बस डेली हैबिट बन गई, वो भी एक चीज जुड़ गई और अब मैं कम से कम 15-20 किताबें पढ़ चुका हूँ और वाकई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. सर पर आप तो बॉक्सिंग करते थे, हमें पता है कि आप बॉक्सिंग रिंग में उतरते थे. और वो स्कूल टाइम की बात है, स्कूल टाइम की बात है. स्कूल टाइम में मतलब ऐसे पैशनेटली नहीं आए, बॉक्सिंग की चले गए, बट रूटीन बनाना जो है अब शुरू किया लगभग पिछले 4-5 साल से. इसमें रनिंग भी जुड़ा, मेडिटेशन जुड़ा, योगा जुड़ा, इवन बुक रीडिंग जुड़ा. तो जो ये बच्चे ये सब करना चाहते हैं तो क्या आपके पास आ सकते हैं सब? हाँ बिल्कुल 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 मेरे पास आ सकते हैं. परफेक्ट. तो
मैं बच्चों को बस यही कहना चाहूंगा कि समय की कोई कमी नहीं है, आप लोग खूब खेलो, खूब कूदो, पढ़ो, पिक्चरें देखो, सब कुछ करो, जितना जितना काम करना चाहते हो सब सब हो सकता है, सब संभव है। सर एक और सवाल कि at what age did you become clear about what you wanted to do in life? अभी जैसे बच्चे, अभी हमारे पास जो मतलब बच्चे हैं 16, 17, 18 साल के बच्चे हम तो देख रहे थे। आदित्य, मैं आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मेरे से बड़ा प्रिय क्वेश्चन है ये। मेरे को आज भी क्लियर नहीं है कि मुझे क्या करना है। मुझे लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि मुझे जो करना है अच्छा करना है, जो भी करना है वो बेहतर करना है। हाँ, यही सवाल प्रोफेसर वोरा, अभी तक प्रोफेसर वोरा से हमने एक ही सवाल मैम, एट व्हाट एज डिड यू फाइनली फिगर आउट कि मुझे एकेडमिशियन बनना है या मुझे ये करना है? हाउ डिड दैट ट्रांसफॉर्मेशन हैपन? अगर Did आप you know when you were 16 years old what you wanted? एक्चुअली मैं अश्विनी सर से बिल्कुल उल्टा हूँ। मैं जिस दिन पहले दिन नर्सरी गई थी स्कूल में पढ़ने के लिए, उसी दिन मैंने आके अपनी मम्मी को बोल दिया था कि मैं टीचर बनूंगी, और मैं वही बनी। और वो मेरा कभी हटा ही नहीं। मेरा यही था कि मेरे को पढ़ना और पढ़ाना, बस यही करना। तो दैट इज वो मेरे लिए काफी क्लियर रहा है कि मेरे को ये करना है। हाँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर बनूंगी ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा, पर मेरे को लीडरशिप का शायद शौक बहुत बचपन से। लीडर होते कौन है, क्या है, ये सब का शौक पहले से। तो यस, मेरे को बहुत पहले से क्लियर था कि मेरे को पढ़ना और पढ़ना। प्रोफेसर स्निग्धा, मैम हम आपसे जानना चाहेंगे बिफोर यू फाइनलाइज कि आप एक एकेडमिशियन बनेंगे, आप एकेडमिक्स में आएंगे, उससे पहले आप क्या क्या सोचते थे कि मुझे ये बनना है या मुझे ये करना है? ओके, तो एक तो मेरे को एक बचपन से एक क्लैरिटी थी कि मेरे को डॉक्टर नहीं बनना है। तो क्या नहीं बनना है वो मेरे को पता था कि डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं बनना है, बिकॉज डॉक्टर बनने के लिए मुझे कॉकरोच डिसेक्ट करना होगा, एंड कॉकरोच से मुझे बहुत डर लगता है। सो मुझे डॉक्टर तो नहीं बनना है। लेकिन पहले सोचती थी कि मैं साइकोलॉजिस्ट बनूंगी, साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। फिर एट सम पॉइंट मैं, बिकॉज मैंने मैनेजमेंट पढ़ा, सो देयरफॉर मैं मैनेजमेंट में बहुत आगे बढ़ूंगी, आई विल बिकम अ टॉप HR मैनेजर, CEO एंड ऑल ऑफ दैट। एंड देन एकेडमिक्स में एक्चुअली बाय एक्सीडेंट, ऐसे ही कुछ नौकरी नहीं थी, एक नौकरी छोड़ दिया था और एक नौकरी ढूंढ रही थी, बाय एक्सीडेंट कहीं पे पढ़ाने का मौका मिला, एंड आई स्टार्टेड टीचिंग कि चलो ये थोड़ी देर के लिए कर लेती हूँ टिल आई फाइंड अ बेटर जॉब। एंड इट सो हैपेंड दैट आई फाउंड कि ये तो मेरे को बहुत मजा आ रहा है। सो दैट इज हाउ आई गॉट इनटू एकेडमिक्स एंड हैव जस्ट स्टेड इन एकेडमिक्स बिकॉज मुझे भी बहुत मजा लगता है। हर समय नई चीज पढ़ने का, सीखने का मौका मिल रहा है, which is something that I find very exciting. So those were all the things that I wanted to be, which then got left behind. And I think I am a little like Ashwini ji, that मेरे को अभी भी clarity नहीं है कि really is this what I really want to do? Is this the end of life and my goal and objective?
गई है? ना सिर्फ कि हम आप जैसे ब्राइट यंग स्टूडेंट्स को एक अच्छी एजुकेशन दे सकें, पर ये स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी इसलिए बनाई अगर आपको 10 से 1 के स्टूडेंट ये बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। 10 से 1 9 और 10 तारीख को आपको वेबिनार लिंक से लॉगिन करना है। इसके अलावा आपको मेल में एक लिंक के थ्रू ऐसी एक पीडीएफ मिली होगी जिसमें फर्स्ट पेज में आपके प्रोग्राम का नाम होगा और आपके कैंपस का नाम होगा। तो ये पीडीएफ जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मतलब उनको ये लिंक विद पीडीएफ ये मिली हुई है। जहाँ पे दूसरे पेज में एक स्नैपशॉट है। हम एनकरेज कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को कि एटलीस्ट 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले ज्वाइन करें ताकि उनको कोई लॉगिन इश्यूज ना हो। तो ये एक तरीके का स्नैपशॉट है 3 दिन के सेशंस का। इसके अलावा ऑफ कोर्स आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है कि डूज एंड डोंट्स क्या हैं जूम सेशंस के, तो इसको ज़रूर आप पढ़िएगा। पर मैं आपको हर दिन के एजेंडा के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। सबसे पहले 9 दिसंबर को जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इनॉग्रेशन एंड वेलकम, ज्वाइन यूजिंग वेबिनार लिंक, अबाउट लीडरशिप टीम, ज्वाइन यूजिंग वेबिनार लिंक, बीइंग अ सक्सेसफुल लर्नर, ज्वाइन यूजिंग वेबिनार लिंक। तो ये क्लियर है कि हम वेबिनार लिंक के थ्रू 1 PM तक सेशंस अटेंड कर रहे हैं। जैसे ही 2 बजे से सेशन शुरू हो रहे हैं और सेशन 4 बजे तक चल रहे हैं, इसमें आपको आपके पीडीएफ पे दी हुई जूम लिंक से ज्वाइन करना है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप वेबिनार लिंक नहीं यूज करेंगे। जो आपके पीडीएफ पे जूम लिंक दी हुई है आप उससे ज्वाइन करेंगे। जो सेकेंड हाफ के सेशन है 9 और 10 तारीख को, ये बहुत जरूरी है ज्वाइन करना, क्योंकि आपके प्रोग्राम से स्पेसिफिक हम सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं, चाहे वो एल्यूमिनाई सेशन हो, चाहे वो इंडस्ट्री से मिलना हो। तो आज
पहला तो 2 से 2:40 को आप लोग एक दूसरे को जाने, आपके ब्रांच में या प्रोग्राम में कौन से स्टूडेंट्स हैं, एक वो सेशन होगा। दूसरा, जो डिप्लोमा से डीएसयू के अच्छे एल्यूमनाई निकले हैं, जिन्होंने काफी सक्सेसफुल काम किए हैं, उनसे भी आप लोगों का इंटरेक्शन होगा। ये दोनों सेशन 2 से 4 के बीच ज्वाइन करने के लिए आप ये सामने जो आपके जूम लिंक दिख रही है, पीडीएफ में जो आपके दी हुई है, आपके प्रोग्राम से स्पेसिफिक वही ज्वाइन करिएगा। एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, प्लीज अपने पीडीएफ्स किसी को फॉरवर्ड मत करिए, क्योंकि ये जो जूम लिंक्स हैं ये स्पेसिफिकली आपके ग्रुप के जूम लिंक है। आप फॉरवर्ड करेंगे एक दूसरे को तो जरूरी नहीं है कि आप गलत इंफॉर्मेशन बेसिकली देंगे अपने साथी को। तो प्लीज जो आपके पीडीएफ आपके मेल में आई है सिर्फ उसी को रेफर करिएगा। डे 2 पे आते हैं। डे 2 में वापस 10 से 1 बजे तक आप वेबिनार लिंक से ज्वाइन करेंगे। इसमें हमारे 2 मेन सेशंस हैं। एक है एक्सप्लोरिंग एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, यहाँ पे भी हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए। वापस 2 से 3:30 के बीच में ये जो जूम लिंक आपके पीडीएफ्स में दी हुई है, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन करिएगा। तो आई होप इट इज क्लियर कि फर्स्ट हाफ में 9th एंड 10th को वेबिनार लिंक से आप ज्वाइन करेंगे, और सेकेंड हाफ में 2 से 4 के बीच में आपके पीडीएफ में जो डे 1 डे 2 में जूम लिंक दी हुई है, आप उससे ज्वाइन करेंगे। डे 3 पे आते हैं। डे 3 में कोई भी वेबिनार लिंक नहीं है, विच इज 11th दिसंबर। 10 से 1 के बीच में आपके कैंपस के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ आपका इंटरेक्शन होगा। आपके प्रोग्राम में क्या पढ़ाया जाएगा, आपकी फैकल्टी कौन होगी, आपके कैंपस में क्या क्या फैसिलिटीज हैं। कई लोगों ने पूछा कि क्लासेस कब से शुरू होंगी या कैंटीन है कि नहीं, वगैरह वगैरह। उस तरीके के सवालों के जवाब आपको इस वाले सेशन में मिलेंगे। तो डे 3 फाइनल डे सैटरडे 11th दिसंबर 10 AM to 1 PM जो जूम लिंक दी हुई है आप उसमें डायरेक्टली ज्वाइन करेंगे। डे 3 पे कोई वेबिनार नहीं है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स। इफ यस देन से यस। ओके, मूविंग ऑन। कुछ सवाल भी आए हैं और मैं स्टॉप शेयर कर रही हूँ। तो कुछ सवाल इस तरीके के आए हैं कि स्टेम 3030 क्या है। आप लोगों को स्टेम 3030 पे मेल भी आया है। तो बेसिकली ये एक ऐसी चीज है जो बेसिकली आईआईटी गांधीनगर के थ्रू ये प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है। आप लोगों को जो लिंक्स गए हैं, आप लोगों को ये एक सेल्फ लर्निंग के लिए एनकरेज किया गया है। क्वेश्चंस हैं, एक्टिविटीज हैं, आप उसको एक सेल्फ लर्निंग की तरह करें। और इसके अराउंड एक एग्जामिनेशंस होगा बाद में, जिसमें जो है आपको एक जॉइंट सर्टिफिकेट मिलेगा डीएसयू और आईआईटी गांधीनगर की तरफ से। जैसे ही आप सेशन ज्वाइन करेंगे ये भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एग्जाम कब होगा, कैसे होगा। बट ये एक सेल्फ लर्निंग क्लास है जो आप बेसिकली लिंक के थ्रू अभी से अटेंड करना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के बैलेंस फी सबमिशन के सवाल हैं। इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको नेक्स्ट 10 डेज में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट ये कह रहा है कि उनको कुछ ट्रांसफर पॉलिसी वगैरह वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इसके अराउंड भी यूनिवर्सिटी आपको नेक्स्ट वीक या 10 डेज में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी। जहाँ तक बुक्स और लाइब्रेरी का सवाल है, वी हैव डिसाइडेड कि देयर आर टेक्स्ट बुक्स व्हिच स्टूडेंट्स विल बी गिवन, सो यू नीड नॉट बाय एनी टेक्स्ट बुक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इसके अलावा जो भी रीडिंग्स वगैरह हैं वो भी आपको फैकल्टी के थ्रू प्रोवाइड की जाएंगी। बिसाइड्स दिस बहुत स्टूडेंट्स ने पूछा कि हमें ईआरपी लॉगिन्स या ईआरपी के पासवर्ड्स नहीं मिले हैं वगैरह वगैरह। तो हमने पासवर्ड्स एंड लॉगिन्स अपने सारे स्टूडेंट्स को भेजे हैं। अगर आपको ऐसा कोई मेल नहीं आया है तो प्लीज आप एक तो अपनी क्वेरी जो है हमारा
हम अभी टाइप कर देंगे, बट हमारी आईडी है admin_academics@dsu.ac.in। जब तो वो मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो ईमेल एड्रेस आप लोगों को डाल दें, लेकिन प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, जब आप उसमें लिखें तो सिर्फ ये मत लिखिएगा आई डेंट रिसीव माई रोल नंबर, क्योंकि पता नहीं, आई डेंट रिसीव माई ERP ID, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर लिखना होगा, प्लीज नोट कर लीजिए। आपको अपना रजिस्ट्रेशन वाला जो एडमिशन के टाइम आपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस दिया है वो लिखना होगा। आपको अपना पूरा नाम लिखना होगा। इसके अलावा प्रोग्राम नेम और कैंपस नेम, ये 5 चीजें आपको लिखनी होंगी, जिससे जो है हम वेरीफाई भी कर पाएंगे कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट या क्या क्रेडेंशियल्स है। इसके अलावा ड्रेस कोड पे मैं आती हूँ। तो DSU हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनी ड्रेस कोड, आप लोगों के लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स आप अगर कॉलेज आ रहे हैं या मतलब अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं, एक एक्सपेक्टेशन ये है कि आप लोग अपने जहाँ तक हो सके वीडियोस ऑन रखें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन्स में पढ़ाने में या पढ़ने में नहीं बिलीव करते हैं, तो अपने वीडियो जरूर ऑन रखें। ऐसी जगह बैठे जहाँ पे आपको भी फील हो कि हाँ क्वाइट जगह है, आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। इसको ऐसे ट्रीट करिए जैसे आप फिजिकल क्लासेस अटेंड करेंगे। तो जो भी आपको लगता है दैट डे कि ये कपड़े पहनने से मुझे खुशी होती है, मैं अच्छी दिखती हूँ, तो प्लीज आप वैसे ही जो भी आपके क्लोथिंग है उस पे ले सकते हैं। इट हैज टू बी प्रेजेंटेबल, इट हैज टू बी डिसेंट ऑफ कोर्स। अच्छा, एक सवाल आया था ओथ कमिश्नर को लेके। ओथ कमिश्नर बेसिकली जो है, जो भी नोटरी होते हैं जहाँ पे भी आप हैं, वहाँ पे आपको बेसिकली प्लेन पेपर में आपको बस वो एक नोटरी से अटेस्ट करवाना है और फिर आप उस ड्राइव में अपलोड कर सकते हैं, जैसा कि आपको मेल में इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। क्लासेस आपकी ऑफकोर्स आपको टाइमिंग्स, टाइम टेबल वगैरह अगले 2 दिनों में जब आप ओरिएंटेशन अटेंड कर रहे हैं तो आपको पता ही चल जाएगा डिटेल में। और फाइनली एक जो सवाल आया है ओखला 1 और ओखला 3 कैंपसेस को लेके। बेसिकली ओखला 1 campus is same. There is ओखला 3 campus, तो जिन लोगों ने अप्लाई किया एडमिशन में ओखला 1 लिख के, it's basically the same campus which is the part of which is called ओखला 3 right now. तो प्लीज कंफ्यूज मत होइए, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। आप लोग उन्हीं इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहे हैं, बट यूनिवर्सिटी ने कॉल लिया है कि उसका एक पार्ट ओखला 3 कहलाएगा। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज क्लियर फ्रॉम आवर साइड। So now we will end the webinar session today. एक मैं वापस ये एम्फसाइज कर रही हूँ कि ये वेबिनार खत्म होगा, कल आप वापस वेबिनार के लिए दोबारा ज्वाइन करेंगे, जो आपको वेबिनार लिंक मिली हुई है। सेकेंड हाफ के लिए मैं सजेस्ट करूँगी आप 1:30 से लॉगिन करना शुरू कर दीजिए। जो आपके PDF में जूम लिंक दी हुई है आप उससे अगर आपको PDF लग रहा है कि आपको नहीं मिली, मैं वापस कह रही हूँ, अगर आपने ये वेबिनार ज्वाइन किया है मतलब आपको PDF वाला मेल मिला है, वापस उसको चेक करिए, प्रॉपर्ली उसको पढ़िए। उसमें एक लिंक है, उसको प्रेस करेंगे तो आपको PDF मिल जाएगा। सो प्लीज गो बैक टू योर ओरिएंटेशन मेल। वेबिनार लिंक पे